परमेश्वर उत्साह देता है, strengthened to live in this world. ताकत देता है ताकि हम इस संसार में जी सकें, Because we are strangers and we are pilgrims here. क्योंकि हम परदेसी हैं और हम यहाँ पर परदेसी के मानंद रह रहे हैं। So receive that encouragement from the Spirit of God today. परमेश्वर की ओर से उत्साह को कबूल करें And grow in courage. और परमेश्वर के उत्साह में बढ़ते जाएं। Amen? Yeah, it's good. It's interesting as we think of Palm Sunday. ये बहुत खुशी की बात है जब हम पाम संडे की बारे में बात करते हैं। There are different things we can focus on. बहुत अलग-अलग चीजें हैं जिस पर हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। We can be glad of the prophecy of God that we know will always take place. और वो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के लिए भविष्यवाणी जो निरंतर काम करती है। Zechariah 9:9, which was quoted in Matthew 21, read earlier. जकरिया 9:9 में जो भविष्यवाणी लिखी है जिसको हम फिर मत्ती की किताब में भी पढ़ते हैं, which calls on Jerusalem to rejoice, जो यरूशलेम में आनंद का विषय बताती है, because her king was coming, क्योंकि राजा आ रहा है and he was bringing salvation, और वो उद्धार लेकर आ रहा है, humbly riding on a donkey. नम्रता के साथ एक गधे पर बैठकर आ रहा है। We could focus on that. हम उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। But Jesus, as he rode into Jerusalem, यीशु जब वो यरूशलेम में आया, he was not deceived by the hearts of all of those who welcomed him. वो किसी भी तरीके से दब नहीं गया उन सब लोगों से जो वहां पर खड़े थे। Jesus knew the hearts of men. यीशु को उनके दिल के बारे में पता था। Now they're all crying Hosanna. वो सब ही नारे लगा रहे थे होसन्ना का, but they all had there were many different motivations in their पर hearts. उन सभी के दिल में एक अलग-अलग प्रतिक्रिया थी। There would have been some who really loved him. उनमें से कुछ ही ऐसे थे जो परमेश्वर से प्यार करते थे। There would have been others, maybe many others, who were hoping he would still lead a rebellion against Rome. और वहां पर कुछ ऐसे थे जो शायद कुछ ऐसे थे जिन्हें ये लग रहा था कि वो अभी भी हमें रोमी सरकार से बचाने वाली बात करेगा। They were looking for an earthly kingdom. वो जमीनी राज के बारे में सोच रहे थे। And there were others still probably in that crowd who came for the show. Jesus was well known. They wanted something वहां पर कुछ spectacular. ऐसे भी थे जो सिर्फ जैसे एक शो चल रहा है, एक शो को देखने के लिए आए थे। They wanted maybe to see something spectacular. वो कुछ खास देखने के लिए वहां पर खड़े थे। So all of these are crying Hosanna. और वो सभी मिलकर होसन्ना के नारे लगा रहे थे। But Jesus knew their hearts. पर परमेश्वर को उनके दिल के बारे में मालूम था। He was not fooled. वो बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। See, the hearts of men are the same today as they were then. और पर लोगों का दिल आज भी वैसा ही है जैसे पहले हुआ करता था। There are those who will say they love Jesus, ऐसे भी हैं जो कहेंगे हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, and Jesus is the living word, the word of God, और परमेश्वर यीशु मसीह जीवित वचन है, and yet there are those who reject so much of the written word, the scripture. और ऐसे भी हैं जो इस वचन को खारिज करते हैं। It's happening right across certainly so much of the Western world now. और ये बहुत ज्यादा पश्चिमी देशों में हो रहा है। People are saying they love Jesus, but they are rejecting the written word, the scripture. वो लोग कहते हैं कि वो परमेश्वर से प्यार करते हैं, पर वो परमेश्वर के वचन को पूरी तरीके से खारिज करते हैं। They like the things that tickle their ears, that make them feel good. और वो कानों की खुजली मिटाने वाले वचनों को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। But so much of the visible church, the mainstream church, has become apostasy, they're falling away. और बहुत से ऐसे मेन लाइन कलीसियाएं आज ऐसी कलीसियाएं बन गई हैं जो लोगों का दर्शन भटका रही हैं या लोगों को भटका रही हैं। You cannot say you love the living word, Jesus, and you reject the written word, the scripture. ऐसा नहीं आप कह सकते हैं कि हम जो जिंदा खुदा है, जो जिंदा खुदा का कलाम के रूप में है, हम उससे तो प्यार करते हैं, पर जो लिखा हुआ वचन है हम उसको खारिज करते हैं। There are others religious who think they have that full understanding of the scriptures. ऐसे बहुत से जातियां हैं जो इस बात को कहती हैं कि उनके पास पूरा ज्ञान है इस वचन का, but they reject Jesus and पर- his demands upon them. पर वो परमेश्वर को पूरी तरीके से खारिज कर देते हैं। You cannot have one without the other.
हम एक के बिना दूसरे को नहीं ग्रहण कर सकते। The living word and the written word go together. They cannot be divided. जीवित वचन जो खुदा है और लिखा हुआ वचन जो हमारे हाथों में है, ये साथ साथ चलते हैं। Jesus spoke to the religious leaders who felt that they had the full knowledge of the scripture, but they were rejecting him. परमेश्वर ऐसे लोगों से, सदूकी और फरीसियों से बात करता था जिन्हें ये मालूम था कि इस वचन का तो पूरा ज्ञान हमारे पास है, पर वो यीशु मसीह का पूरी तरीके से इनकार करते थे। He says in John 5:39, he says to them, "You seek the scriptures because in them you think you have eternal life." You seek the scriptures, in them you think you have eternal life. और यूहन्ना की किताब उसका 5:39 में इस तरीके से लिखा भी हुआ है कि तुम वचन को ढूंढते तो हो पर उसे पाते नहीं। And these, the scriptures, are those that speak about me. और ये वो परमेश्वर का वचन है जो हमारे बारे में बात करते हैं। But you refuse to come to me to have life. पर तुम मेरे पास आने से इनकार करते हो कि तुम्हें जीवन मिले। They thought they knew the scripture, उन्हें ये लगता था कि उन्हें वचन मालूम है, but they were rejecting the living word. पर वो परमेश्वर जो जीवित कलाम बनकर इस जमीन पर आया उसका इनकार करते थे। We are living in a time where so much of this is happening now. हम ऐसे समय पर रह रहे हैं जहां पर ऐसी बहुत सी चीजें हो रही हैं। And what Jesus did, what he always did, was to seek the hearts, search the hearts of men and know which ones truly loved him. और यीशु मसीह जो निरंतर करता रहा है वो ये है कि वो लोगों के दिलों को खोजता रहा है और ऐसे दिल जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। We are living close to the end. हम अंत के बहुत करीब हैं। For those who were there on Wednesday night, my wife Mary spoke of overcoming. जो मेरे घर की आराधना जो लेंट की थी, अगर आप उसमें थे तो इनकी पत्नी ने ये वचन सुनाया था कि अंत के दिनों में क्या होगा। The 7 churches in Revelation where Jesus speaks of them needing to overcome. और जिस तरीके से प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरीके से चीजें होंगी। But overcoming begins and ends only if you truly love Jesus. पर जयवंत आप तभी हो सकते हैं जब आप पूरी तरीके से परमेश्वर से प्यार करते हैं। Overcoming can happen no other way. You have to love him. जय आप ऐसे ही नहीं पा सकते हैं, आपको पूरी तरीके से प्यार करना होगा। People think they're religious, they keep different things, they come to church, they read, they do whatever. But if they don't truly love the living God, there's no overcoming for लोग them. बहुत सी चीजें करते हैं, जातियां बहुत सी चीजें करती हैं, वो अलग अलग चीजों में ढूंढती हैं, पर आप जय तब तक नहीं पा सकते जब तक आप परमेश्वर से प्यार नहीं करेंगे। So it's the love for Jesus and the love for the written word, the whole picture that matters. और ये जरूरी है यीशु से प्यार करना और यीशु के वचन से प्यार करना, और यही पूरी कहानी है जिसमें हमें बने रहना है। Because remember, याद रखें, some of those who called out Hosanna, याद रखें उनमें से कुछ ऐसे जो होसन्ना के नारे लगा रहे थे, some days later also called out crucify him. वही लोग उनमें से थे जिन्होंने कुछ समय के बाद कहा इसे क्रूस पर चढ़ा दो। Out of the same mouth came Hosanna and crucify. और एक ही लबों से उनके होसन्ना के नारे भी निकले और उन्हीं जुबान से ये भी निकला कि इसे क्रूस दो। The hearts of men are deceitful above all things, the scripture says. और परमेश्वर के दिल, लोगों के दिल इस बात से धोखा खाते हैं। We must be very careful. We must know where our hearts are. हमें बहुत ही केयरफुल होना चाहिए कि हमारे दिल कहां पर हैं। Let's pray before we go further. आइए हम दुआ करें इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चलें। Father God, I thank you for each person here. परमेश्वर हम हर एक दिल, हर एक इंसान के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं जो यहाँ पर है। I thank you that they are here because you have brought them here. हम धन्यवाद करते हैं वो यहाँ पर आज इसलिए है क्योंकि आप उन्हें यहाँ लेकर आए हैं। Lord, you are the God of revelation. परमेश्वर आप प्रकाशनों के परमेश्वर हैं। We know our faith is by revelation. हम जानते हैं हमारा विश्वास प्रकाशनों के द्वारा है। We can read the scripture, हम परमेश्वर तेरे वचन को पढ़ते but हैं, unless your spirit takes the scripture and it reveals to our hearts, then it means nothing. पर जब तक तेरा आत्मा हमें परमेश्वर तेरे वचन के बारे में ना समझाए तब तक हम कुछ नहीं जानते। I pray for revelation for each person here, the oldest and the youngest. मैं दुआ करता हूँ आज प्रकाशन हर एक जन के लिए हो, छोटे से लेकर बड़े तक, And a strengthening to live faithful lives in these days. और ऐसी ताकत परमेश्वर के हम इन अंत के दिनों को गंभीरता से जी सकें। Lord, we are your people. हम परमेश्वर तेरे लोग हैं।
whatever governments say, whatever governments try to do, जो कुछ सरकार कहे और जो सरकार सोचे, Lord, we are your people. हम- We are pilgrims in this world. हम तेरे ही लोग हैं परमेश्वर पिता, और हम इस देश में, हम इस संसार में परदेसी के समान हैं। And you are making us ready to see you face to face one day. और आप हमें इस लायक बना रहे हैं ताकि एक दिन हम परमेश्वर तुझे रूबरू देखने वाले हो सकें। We bless you, Lord. हम तुझे In Jesus' महिमा name. देते हैं Jesus. यीशु के नाम से, Amen, amen. आमीन। There has always been a fascination with Jesus. और परमेश्वर के साथ हमेशा एक Fascination. चमक रही है। People were fascinated with him when he walked on this earth. एक ऐसी चमक रही है जब यीशु मसीह जमीन पर चलता था और लोग उसे देखते थे, And for the 2000 years, people have been fascinated with him. और 2000 सालों से वो आकर्षण, वो चमक परमेश्वर की बनी रही है। People have wanted to see spectacular things, और लोग हमेशा से एक अद्भुत ही चीजों को देखना चाहते थे, miracles, चमत्कार, or they have wanted to receive something from him. और या फिर वो कुछ परमेश्वर से पाना चाहते थे। So many have wanted blessing, कुछ लोग आशीष चाहते थे, but they only want blessing, they don't want the whole picture. पर वो सिर्फ एक आशीष चाहते थे, पर वो पूरी कहानी को नहीं जानते। And that is what so much of what we call the prosperity gospel has been based on. और जिस तरीके से हम जानते हैं कि बहुत सी बार सिर्फ तरक्की का ही वचन पेश किया जाता है। We have that in the West too. People will come to church or something when they need something. और हम जैसे जानते हैं कि लोगों को जब कुछ चाहिए होता है तब वो परमेश्वर के पास आते हैं, And when they receive it, they disappear and you don't see them और again. जब उन्हें मिल जाता है तो वो गायब हो जाते हैं। It's true of so many people in this country also. और ये सच है कि इस देश में भी बहुत से लोग, They think they can get something from Jesus, उन्हें लगता है कि हमें परमेश्वर से कुछ मिल जाएगा, but they don't want to give their lives to him. पर वो परमेश्वर को अपना जीवन देना नहीं चाहते, They don't want to pay the price वो उसका दाम चुकाना नहीं चाहते of following him. परमेश्वर के पीछे चलने का। John chapter 6 speaks, it's a good picture of what I'm talking about. और यूहन्ना किताब उसका 6 बाब एक अच्छी प्रतिक्रिया है जिसके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं। In verse 26 of John chapter 6, people who were fed by Jesus at the feeding of the 5,000, वो लोग 5000 की भीड़ वाले जिनको यीशु मसीह ने खिलाया था, they heard he was in a certain place and they came and looked for him and they found him. और वो ढूंढते ढूंढते परमेश्वर के पास आए और उन्हें परमेश्वर मिल गया, यीशु मिल गया। But in verse 26 he says to them, पर 5 बाब उसकी 26वीं आयत में वो कुछ कहने लगा, you looked for me not because of the signs but because of the bread you ate. तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते क्योंकि तुमने चमत्कार देखे हैं, पर तुम इसलिए ढूंढते हो ताकि तुम तृप्त किए जाते हो। You looked for me because your bellies were filled. तुम इसलिए मुझे ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारे पेट भरे गए हैं। They were looking for him to get something from him. वो उसे इसलिए ढूंढना चाहते थे ताकि यीशु से उन्हें कुछ मिल सके। And he's very clear with them. That's why you look for me. और वो बहुत साफ था उनके साथ कि तुम मुझे क्यों ढूंढते हो। Remember, they'd already seen that amazing sign at the feeding of the 5,000. उन्होंने ये वाली चीजें देखी हैं कि किस तरीके से 5000 की भीड़ को खिलाया गया है। But in verse 30, they ask him again, show us a sign that we may believe. और 30वीं आयत में सारी चीजें देखने के बाद 30वीं आयत में 30th वर्ष में वो कह रहे हैं, हमें कुछ ऐसा दिखा जिसके कारण हम विश्वास करें कि तू परमेश्वर का पुत्र है। That's not faith. ये विश्वास नहीं हो सकता। They want to see a sign and then they believe. वो कुछ चिन्ह को देखना चाहते हैं, उसके बाद वो विश्वास करना चाहते हैं। They've already seen an amazing sign. वो पहले ही अद्भुत चिन्हों को देख चुके हैं। And then Jesus makes it very clear to them what they need. और फिर यीशु बहुत साफ कर देता है कि उनकी जरूरत क्या है। If someone can read verses 35 and 36 of John 6. जो यूहन्ना किताब उसका 6 बाब और उसकी 35 और 36 आयत को अगर हम पढ़ेंगे, 35 and 36. 35 और 36, 35 and 36. यीशु ने John उनसे 6. कहा, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था
कि तुमने मुझे देख भी लिया है और तो भी विश्वास नहीं करते। He says, I am in front of you, I am the one you need, I am the bread of life. मैं तुम्हारे सामने हूँ। यीशु कह रहे मैं तुम्हारे सामने हूँ और मैं ही वो जगत की रोटी हूँ। I'm here in front of you. You मैं can तुम्हारे see me, सामने खड़ा हुआ हूँ, तुम मुझे देख सकते हो, but you're not believing. पर उसके बाद भी तुम विश्वास नहीं कर रहे। These people were completely self-focused. ये पूरी तरीके से मतलबी लोग थे। But now the passage becomes more serious और अब ये वचन और गंभीर हो जाता है, because he's been speaking to regular people outside, क्योंकि वो लोग जो साथ चल रहे थे हमेशा उनसे सामने बात कर रहा है। but from verse 41 on, he is teaching in the synagogue. और सिनागोग में वो 41वीं आयत में कुछ इस तरीके से बात कर रहा है। The religious leaders are there, सदूकी और फरीसी वहां पर हैं, but also पर many of his disciples. उसके साथ बहुत से उसके चेले भी। The passage makes it clear, not just the 12, but many more who had the name of his disciples upon them. ना सिर्फ 12 चेले वहां पर हैं, पर ऐसे बहुत से लोग जिनके ऊपर चेले होने का एक चिन्ह है या जो चेले कहलाते हैं। And Jesus now really exposes their hearts. और यहाँ पर यीशु मसीह पूरी तरीके से उनको उनके दिलों को खोल रहा है, प्रकाशित कर रहा है। Read verse 51. If someone can read verse 51 of John 6. 6 बाप उसकी 51 आयत में इस तरीके से लिखा हुआ है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। So the bread that I give is my flesh. जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वो मेरा मांस है। This is becoming quite confronting for people. और ये लोगों के लिए बहुत ही चेतावनी वाली बात उनके लिए हो रही है। And verse 54. 54 आयत में, Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. जो मेरा मांस खाता है और मेरे लहू को पीता है, अनंत जीवन उसी का है। Whoever eats my flesh and drinks my blood. That's very strong language. और जो मेरा मांस खाता और मेरे लहू में से पीता है, ये बहुत ही बड़ा ताकतवर संदेश है। There may have been many people there not really understanding what he was saying. बहुत ऐसे लोग थे वहां पर जो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि यीशु कहना क्या चाहता है। But he's doing what Jesus always does. He will bring people who call themselves followers, call themselves disciples. और यीशु मसीह ठीक वही कर रहा था जो उसको करना आता, और वो सुना रहा था कि जो उन लोगों को जो अपने आप को परमेश्वर के पीछे चलने वाला बताते हैं, He will bring them to a point where they have to make a full-hearted choice. और वो ऐसी जगह पर उन्हें लाना चाहता था जहां पर वो पूरे दिल से एक निर्णय करें। He's drawing a dividing line. और वो बीच में एक रेखा खींच रहा है, And that line is himself. और वो जो रेखा है वो खुद यीशु ही है। Because you have so many who want one foot in the world, one foot in the kingdom. और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका एक पैर तो संसार में है और दूसरा पैर राज्य में, परमेश्वर के राज्य में This है। is not possible. ये मुमकिन नहीं है। And this is what Jesus does here. He is pointing towards the cross. और ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए परमेश्वर यहाँ पर कर रहा है, वो पूरी तरीके से क्रूस की ओर उनके ध्यान को केंद्रित कर रहा है। But this is where the exposure of their hearts happens. और यहाँ पर उनके दिल को पूरी तरीके से परमेश्वर जांच कर खोलना चाहता है। Who are disciples in name only, कुछ ऐसे चेले जो सिर्फ नाम मात्र ही के चेले and हैं, who are disciples because they truly love Him. और ऐसे कुछ चेले जो परमेश्वर से सच में बहुत प्यार करते हैं। So this strong language here तो ये बहुत गंभीर जो संदेश यहाँ पर है, means that in verse 60 it says many of His disciples, many. और 60वीं आयत में कहता है बहुत से ऐसे। They said, this is a hard saying. Who can understand it? This is a ये hard गंभीर saying. बात है, इसको कौन समझ सकता है? What they're saying is, well, we are not going to understand it. जो बात हो रही है शायद आसान नहीं है समझना, And they are now in the process of rejecting His words. और उस प्रतिक्रिया में जहां पर उसके वचन को का इनकार किया जा रहा है। They're showing where their hearts really are. वो ये दिखा रहे हैं कि उनका दिल आखिर है कहां।
Remember, you can't say you love Jesus and also reject his words. You have to accept his words also. ऐसा नहीं हो सकता कि आप परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं और उसके वचन को आप पूरी तरीके से इनकार करें। And then one of the most challenging verses I think in the Bible और एक बहुत ही गंभीर आयत जिसको जो मुझे लगता है वचन में है। It says in verse 66, many who had followed him, many went back and walked with him no more. और ऐसे बहुत से लोग जो पीछे चले गए और उसके पीछे चलना फिर उन्होंने अच्छा नहीं समझा। Many went back and walked with him no more. और बहुत से ऐसे लोग जो पीछे चले गए और फिर उसके संग नहीं गए। We can think of scripture, can't we, that says, he who puts his hand to the plow, if he turns back, he's not fit for the kingdom of वचन God. कहता है जो जुए पे हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है वो फिर मेरी सेवा के योग्य नहीं हो सकता। They are showing they are not fit for the kingdom. और ये लोग दिखा रहे हैं कि ये परमेश्वर के राज्य के लिए विश्वास योग्य नहीं है। They were called disciples. ये चेले कहला रहे The हैं community would have known they were disciples of Jesus. और जो वहां के लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि यीशु के चेले हैं, But now they are leaving him. पर अब वो परमेश्वर को छोड़कर चले जा रहे हैं। And Jesus turns to the 12. और यीशु मसीह 12 की ओर देखकर कह रहा He है says, do you also want to go away? और वो 12 की ओर देखकर कह रहा है क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? Do you think he was hurt by the fact that so many left him? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर को इस बात से चोट पहुंची थी कि बहुत से लोग उसको छोड़कर जा चुके हैं? It's an interesting question. Maybe in his humanity there's an element of hurt, but he was always so secure in the Father, wasn't he? ये बहुत ही एक ऐसी बात है जहां पर उसे लग रहा हो बहुत से लोग ऐसे मुझे जो छोड़कर जा चुके हैं, ये बहुत चोट लगने वाली बात है, पर उसके दिल में जो उसके परमेश्वर जो उसके पिता की ओर से उसके मन में था वो जानता था। He was more concerned for the one, I think he was more concerned for them because they'd gone away. He knew the consequences. उसे इस बारे में मालूम था और उसे मालूम था कि अब क्या होगा जो उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। And now comes a most beautiful declaration of love. और अब बहुत बड़ी घोषणा जो आ रही है जो प्यार की है। Peter speaking on behalf of all the others. पतरस सबकी तरफ से बोलना चाह रहा है, बोल रहा है। He says, Lord, to whom shall we go? और वो कह रहा है परमेश्वर तो हम किसके पास जाएं? It's not where shall we go or anything. To whom? You see, over the time they'd been with Jesus, they were growing in love for him. ऐसा नहीं कि हम कहां जाएं, पर हम किसके पास जाएं? और ये वो समय था जब वो परमेश्वर के प्यार में और उसके वचन में बढ़ रहे हैं। That's why they say, to whom shall we go? There's no other person that could take Jesus' place for them. और इसीलिए वो कह रहे हैं हम किसके पास जाएं, क्योंकि कोई ऐसा यीशु के बिना नहीं हो सकता जो यीशु की जगह ले सके। And then he says, you have the words of eternal life. और फिर वो कहता है कि तेरे ही पास जीवन की बातें हैं। They knew what really mattered. वो जानते हैं, The words of Jesus had grabbed their heart. वो ये जानते हैं कि क्या मतलब रखता है और परमेश्वर के वचन ने उनके दिल को छा लिया है। In all the time they'd been with him, they knew their lives would never be the same. और जब उन्हें मालूम है जो जीवन हमारा यीशु के साथ है ऐसा और कहीं पर किसी तरीके से नहीं हो सकता। He did not promise them that they would become great missionaries, यीशु ने उनसे वादा नहीं किया कि तुम एक बहुत बड़े मिशनरी बन जाओगे, or that they would build huge churches, और ये भी नहीं कहा कि तुम बहुत बड़ी कलीसियाएं बनाओगे, or that many people would follow them. और ऐसा भी नहीं कि बहुत से लोग इन चेलों के पीछे चलने लगेंगे। All that mattered for them was that his words were eternal life. और सिर्फ जो उनके लिए मायने रखता था वो ये था कि तेरे पास अनंत जीवन की बातें हैं। And because they loved him and they loved his words, और क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से प्यार किया और परमेश्वर के वचन से प्यार किया, they were not going to leave him. वो परमेश्वर को छोड़ना नहीं चाहते थे Nothing was going to make them leave him. और कोई भी बात उन्हें परमेश्वर को छोड़ने के लिए नहीं कह सकती थी। It's a beautiful declaration in the scripture of love. और ये बहुत ही खूबसूरत घोषणा है परमेश्वर की मोहब्बत की। You know, there's a Psalm 119, verse 130. Just the first part of the verse says, "The entrance of your words gives life." Gives light. भजन संहिता 119 और उसकी 130 आयत इस बात को बताती है कि तेरा वचन
मेरे लिए दीपक का काम करता है, उजियाले का काम करता है। Now, in the time that the disciples had been with Jesus, his word had been entering them, giving light into their lives. जब यीशु मसीह चेले यीशु मसीह के साथ हैं तो यीशु मसीह का वचन उनके जीवन में एक रोशनी का काम कर रहा है। We have the choice to allow his word to enter or not. हमारे पास एक चुनाव है कि हम उसके रोशनी में दाखिल हो या ना हो। They had allowed his word to enter. उन्होंने चाहा है कि परमेश्वर का वचन उनके जिंदगी में काम करे। The ones who went away were showing they'd never allowed his words to enter. The ones who left him. जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया वो उन्होंने कभी नहीं चाहा कि परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का उजियाला उनके जीवन में प्रवेश करे। If you reject the words of Jesus, darkness will remain in you. अगर आप परमेश्वर के वचन का इनकार कर देंगे तो अंधकार सदा आपके जीवन में बना रहेगा। But these 12, except for Judas, they had allowed his words to enter and they had light. पर ये 12 चेले यहूदा स्कृति को छोड़कर इन्होंने ये चाहा है कि परमेश्वर का वचन इनके जीवन में बना रहे। So just get this clear in your heart, okay? Many left, only few remained. तो इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझें कि बहुत से ऐसे थे जो यीशु को छोड़कर चले गए थे और बहुत थोड़े थे जो यीशु के संग बने रहे। That's happening in our world today. So many are leaving Jesus, but they still call themselves Christians, and only a few are faithful. आज इस संसार में भी ऐसा ही हो रहा है जब बहुत से लोग यीशु को छोड़कर चले जा रहे हैं उसके बाद भी वो अपने आप को मसीह बोलते हैं पर बहुत थोड़े हैं जो परमेश्वर के समीप अभी भी बने हुए हैं। In my country Australia it's happening so much. मेरे देश ऑस्ट्रेलिया में ऐसा बहुत हो रहा है। People are rejecting the word of God. वो परमेश्वर के वचन का तिरस्कार कर रहे हैं, उसे छोड़ रहे हैं। Still churches they call themselves Christian churches. और उसके बाद भी कलीसियाएं अपने आप को मसीह कलीसियाएं बोलती हैं। But they are not living as faithful believers. पर वो विश्वास योग्य पात्र बनकर नहीं रह रहे हैं। Only the few, only the few. सिर्फ थोड़े। And the scripture is full of that, isn't it? और- Only the few, only the remnant. और परमेश्वर का वचन इस बात से भरा हुआ है कि कुछ ही थोड़े ही हैं। There's a beautiful picture of this. It's not the right context, but it's a lovely picture. Jeremiah chapter 2 verse 2. यिर्मयाह 2 और उसके दूसरी आयत में एक कहानी है और इस तरीके से है। यिर्मयाह 2:2। Jeremiah 2:2. If you want to read it, just read. जा और यरूशलेम में पुकार कर ये सुना दे, यहोवा ये कहता है तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे चली जहां भूमि ज्योति बोई ना गई थी। I love the picture of this. There's the picture of Jesus there in the wilderness. मुझे ये पिक्चर अच्छी लगती है जहां पर जंगल में यीशु की कहानी है। But it's the wilderness of men's opinion. पर ये जो जंगल की जगह है ये मनुष्य की प्रतिक्रिया है। Most people don't care about Jesus. They don't know about him, they don't care. बहुत से लोग ना यीशु को जानते हैं ना यीशु की परवाह करते हैं। But the faithful ones go to him in that wilderness. पर जो विश्वास योग्य है वो उस जंगल के मार्ग में भी परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। If you know him and you love him, you go to him and you betroth yourselves to him. अगर आप परमेश्वर को जानते हैं और उससे प्यार करते हैं तो आप परमेश्वर के पास जाएंगे और उसको ग्रहण करेंगे। What is betrothal? It's engagement, isn't it? For marriage. Betrothal. जैसे शादी की सगाई होती या साथ में मिलना होता है उसकी बात हो रही है। No lakhs of rupees of celebration, nobody else there, just you and the lover of your soul. लाखों रुपया नहीं है या बहुत सी चीजें नहीं है पर सिर्फ आप और परमेश्वर और वो प्यार। But what is a betrothal? It looks forward to the wedding. पर वो क्या चीज है जो बिल्कुल आपको प्रकाशित करती है कि वो बिल्कुल एक शादी की मानंद है। And we all look forward to the marriage supper of the Lamb. The marriage supper of the Lamb, we all look forward to. और हम सब इस बात के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं कि वो जो
मेमने के विवाह के बारे में लिखा है। We betroth ourselves to Jesus here in the wilderness of this world. हम इस संसारिक जंगल में जब हम परमेश्वर के साथ इस तरीके का रिश्ता कायम करते हैं, But the marriage supper of the Lamb will take place in glory with all the saints across all age. पर मेमने का विवाह सबके सामने होगा, जो परमेश्वर के समीप होंगे। Let that grab your heart. Let that encourage you. Let that keep that in your mind. What we're aiming towards. ये बात आपको उत्साहित करे, ये परमेश्वर का वचन आपको और भी उत्साहित करे कि हम उस मेमने के विवाह के बारे में सोच सकें। So that's the wilderness of this world's opinion. तो ये एक जंगल का मार्ग है जो संसारिक सलाह में होता है। Think of the one. There was a man who literally lived in the wilderness. एक इंसान के बारे में सोचे जो वाकई में ऐसी जगह पर जो जंगल सी हो उसमें रहा है। He didn't care what people thought about him. उसे ये नहीं परवाह थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, He was there fulfilling God's call. और वो इसलिए था ताकि वो परमेश्वर की महिमा को या मर्जी को पूरा करे, His whole heart was to love the Lord. और उसका पूरा दिल था कि वो परमेश्वर से प्यार करे, And he was very focused upon Jesus. और वो पूरी तरीके से यीशु पर ध्यान केंद्रित था। Who am I talking about? मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? Anyone? क्या कोई बता सकता है? John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। He literally lived in the wilderness. वो सच में ऐसे जंगली जगहों पर रहा है। But when we think of the strength of his love for Jesus, पर जब हम उसकी उस यूहन्ना की उस ताकत के बारे में सोचते हैं जो परमेश्वर से प्यार करने के लिए था, in John chapter 3 verse 29, John is speaking. यूहन्ना 3 और उसकी 29वीं आयत में यूहन्ना कुछ कह रहा है। यूहन्ना 3:29। And he calls himself the friend of the bridegroom. और वो अपने आप को दूल्हे का दोस्त कह रहा है। And he says, the friend of the bridegroom, speaking of himself, the friend of the bridegroom stands and hears him, hears the bridegroom. और दूल्हे के बगल में खड़ा होकर जो सहवाला होता है या दूल्हे का दोस्त होता है वो सुन रहा होता है, Stands watching, waiting for the bridegroom. और खड़ा हुआ है, सुन रहा है, सचेत है दूल्हे के लिए, And stands in respect. We respect the bridegroom. और वहां पर आदर के साथ खड़ा हुआ है उस दूल्हे के लिए। And what does he then say? He says, speaking of himself, that he rejoices greatly because of the bridegroom's voice. और वो इस बात को कह रहा है कि दूल्हे की आवाज सुनकर वो बहुत ही खुश हो रहा है। This is another level of love. ये एक अलग पायदान है प्यार का। This is not, okay, Jesus, you explain doctrine to me, explain parables to me, nothing like that. इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर तूने मुझे इसके बारे में बताया है और ऐसी चीजें मैं जानता हूँ। This is simply the sound of the voice of Jesus. ये सिर्फ एक आवाज है यीशु की जुबान से। I'll just give a poor example. मैं एक उदाहरण देता हूँ। When I was a child, my father was in ministry, and he would often travel away from us for several months. जब मैं बच्चा था तो मेरे पिता सेवक थे और वो बहुत यात्राएं करते थे और कई महीनों तक वो यात्राएं करते थे। And I still remember how excited we were when he came home. और हमें ये मालूम है मैं कितना खुश होता था जब हमारे पिता वापस घर आते थे। And I remember the sound, just the sound of his voice at the door. और हम इसी बात से खुश हो जाते थे अपने पिता की आवाज को सुनकर जब वो दरवाजे पर आते थे। And we would run and jump into his arms, और हम दौड़कर भागकर जाते थे दरवाजे पर उन्हें लेने के लिए। Just the sound of his voice. सिर्फ उनकी आवाज सुनकर। And for John, it was just the sound of Jesus' voice. और यूहन्ना के लिए सिर्फ वो यीशु की आवाज थी। It brought him joy. और यूहन्ना के अंदर वो खुशी को लेकर आ रही थी। And then something that is unique to John in all of scripture and history, I believe. और कुछ ऐसा जो बहुत ही अद्भुत था यूहन्ना के लिए जो पूरी हम इतिहास बाइबल के इतिहास में बात करेंगे। He says, therefore this joy of mine is fulfilled. और इसलिए ये परमेश्वर का जो आवाज है या प्यार है जो पूरी होती है। So if this joy is fulfilled, it must start somewhere. अगर ये खुशी पूरी हो रही है तो ये खुशी कहीं से आरंभ भी हुई होगी। Nothing can be fulfilled unless it has a beginning. कोई भी चीज पूरी नहीं हो सकती जब तक उसकी शुरुआत ना हुई हो। Where did it start for John? कब शुरू हुआ यूहन्ना के लिए?
It started in his mother's womb. और ये यूहन्ना के लिए शुरू हुआ जब यूहन्ना माँ के गर्भ में ही था। In Luke chapter 1 and verse 41, एक बाप उसकी 41वीं आयत लूका में लिखा है, we see Elizabeth, John's mother, who is now 6 months pregnant with John. हम यूहन्ना की माँ इलिशिबा के बारे में जब जानते हैं जो 6 महीने से गर्भवती थी। And Mary has just had the visit from the archangel Gabriel. और मरियम सिर्फ उसको वहां पर मिलने के लिए आई थी। And she comes to see Elizabeth. और वो सिर्फ इलिशिबा को मिलने के लिए आई थी। Elizabeth was her relative. और इलिशिबा उसकी रिश्तेदार थी। And it says that John leapt in his mother's womb at the sound of Mary's voice. और लिखा हुआ है कि सिर्फ मरियम की आवाज सुनने के द्वारा इलिशिबा के गर्भ के अंदर जो बच्चा था, यूहन्ना था, वो कूदने लगा, वो हिलने लगा। At the sound of Mary's voice, he leapt in his mother's womb. सिर्फ मरियम की आवाज सुनकर गर्भ में बच्चा कूदने लगा। That's where it began. And now, as a man, his joy is fulfilled at hearing Jesus' voice. यूहन्ना की वो शुरुआत थी जो माँ के गर्भ में थी, और अब जब वो दूल्हे की आवाज को सुन रहा है, वो उसके खुशी को पूरा करने वाली बात है। It's a beautiful, beautiful story. ये बहुत खूबसूरत कहानी है, Unique in all of Scripture अद्भुत है पूरे वचन में and probably all of history. और शायद पूरे इतिहास में। Because John was also filled from the Spirit, filled in the Spirit from his mother's womb. क्योंकि यूहन्ना भी अपने माँ के गर्भ से ही आत्मा से भरपूर था। This joy is ours. This joy is also ours if we really love Jesus. उसका उत्साह हमारे लिए भी हो सकता है यदि वाकई हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। If you love Jesus a little, you'll only have to pay a little price. यदि आप परमेश्वर से थोड़ा ही प्यार करेंगे तो आप थोड़ा ही दाम चुकाएंगे। So many people who call themselves believers, Christians in this world, they love Jesus a little bit. बहुत से लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं संसार के अंदर, वो परमेश्वर से थोड़ा ही प्यार करते हैं। They won't say that, but you look at the fruit of their lives, it's true. वो ऐसा कहेंगे नहीं कि वो थोड़ा प्यार करते हैं, पर उनके जीवन के फलों से आप भाप सकते हैं कि वो थोड़ा ही प्यार करते हैं। And they don't have to pay much of a price. और इसलिए वो ज्यादा दाम चुकाना भी नहीं चाहते। You love Jesus a lot, यदि आप परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, you will have to pay a big price. तो आपको एक बड़ा दाम भी चुकाना होगा। John the Baptist lost his head. He was beheaded. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया गया। As a young man, जवान इंसान था वो। all the apostles except John the apostle, they were all killed for the name of Jesus. सभी चेले यूहन्ना के अलावा अलग अलग तरीके से वो मारे गए हैं। But the joy they had in following him, और जो खुशी उनके अंदर थी परमेश्वर के पीछे चलने की, do we want that joy? Do we want it? क्या हम उस खुशी को अपने जीवन में चाहते हैं? क्या सच में चाहते हैं? You have to love him with every part of your being. आपको अपनी जिंदगी के इंतहाई हिस्सों से उसे प्यार करना है। The greatest commandment. यही सबसे बड़ा कमांडमेंट है, Love आज्ञा the है। Lord your God, all your heart, all Yeah. your mind, all your soul, all your strength. यही तो आज्ञा परमेश्वर ने दी है। परमेश्वर से पूरे दिल से, पूरी ताकत से, पूरी जो कुछ तेरे पास है, उससे तू परमेश्वर से प्यार कर। That's not just God out there. That's the person of Jesus. We love him. ये सिर्फ खुदा की बात नहीं है, ये परमेश्वर का पुत्र है, हमें जिससे प्यार करना है। But be ready to pay a price, पर साथ ही आप तैयार भी हो दाम चुकाने के लिए, a heavy price. एक बड़ा दाम। Why do we? So, the scripture is so familiar in Matthew, Mark, and Luke, the same parallel passages. लगभग एक जैसा आप वचन को देखेंगे मत्ती, मरकुस, लूका में। He who would come after me, or whoever would come after me, let him deny himself. Then what? जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे, और उसके बाद क्या? What's the next part? उसके बाद क्या है? Let him deny himself, take Wo- up his cross वो अपना इनकार करे और क्रूस उठाए, और daily, every day, हर दिन and follow me. क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। Every day. हर दिन।
Every day we are to reckon our flesh as though it's dead. हमें हर दिन अपनी देह को ऐसा बनाना है कि हम अपनी देह में मरे हुए हैं। Every day, this world system around us, we have to reckon it. This is not for us. This is not our world. हर एक दिन में जब आप संसार में होंगे, आप संसार की ओर देखकर आपको यह कहना है, यह संसार मेरे लिए नहीं है। And every day we have to go against the flow of the world. हर दिन हमें संसार के विपरीत चलना होगा। That is true love for Jesus. यह सच्चा प्यार है परमेश्वर के लिए। Because the verse goes on to say, और वचन इस तरीके से पढ़ता है, whoever would save his life will lose it. जो अपने जीवन को बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा। If you want to save your life in this world, ultimately you will lose it. अगर इस संसार में अपने जीवन को हम बचाना चाहेंगे तो हम उसे खो देंगे। But whoever loses his life for my sake, and in the Mark gospel it says, and the gospel's sake, पर जो मेरे लिए अपने जीवन को कुर्बान करेगा, जैसा मरकुस में लिखा हुआ है, जो सुसमाचार के लिए अपने जीवन को दे देगा, that person will find it. और वो जीवन को फिर से पाएगा। I want to stand before Jesus at the judgment seat and not be ashamed. मैं यीशु के सिंहासन के सामने खड़ा होना, न्याय आसन के सामने खड़ा होना चाहता हूं और शर्मिंदा नहीं होना चाहता। We all as believers will stand before the judgment seat of Christ. That's the judgment of reward for believers. हम एक दिन यीशु के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे और हम सभी को वहां पर एक दिन खड़े होना है। We will be facing the one that we've either loved a little bit or we've loved with our whole हमें heart. एक दिन ऐसे न्याय आसन के सामने खड़ा होना है और वहां पर एक ऐसा बैठा होगा जिसके सामने हम खड़े होंगे जिससे हमने थोड़ा प्यार किया था या हमने बहुत प्यार किया था। There'll be no excuse on that day. वहां पर कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। There'll be no running away. वहां से आप भाग नहीं सकते। We will know straight away if we've loved him completely or not. वहां पर हम जान जाएंगे कि हमने वहां पर सच में परमेश्वर से प्यार किया है या नहीं किया है। So it's serious, but it's a very beautiful thing. ये गंभीर बात है पर बहुत खूबसूरत बात है। Because the scripture also says, 1 Corinthians chapter 2 verse 9, पहला कुरिन्थियों 2 बाब उसकी 9वीं आयत में वचन कहता है, that no eye has seen, no ear has heard, nor has entered into the heart of men what God has prepared for those who love him. जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना और जो मनुष्य के चित्त पे नहीं चढ़ा है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो परमेश्वर ने तैयार की है उनके लिए जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। We have the most incredible eternal future ahead of us. हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया और अनंत जीवन की भविष्य है। For this short life, God calls us to be faithful, इस छोटे से जीवन के लिए परमेश्वर ने कहा है विश्वास योग्य बनो। to be willing to pay the price to follow him. इच्छा पूर्वक हम परमेश्वर के लिए दाम चुकाने वाले बन सकें। None of us in this room, we have no idea how much longer we have. इस कमरे के अंदर इस भवन में कोई नहीं जानता कि हमारे पास कितना समय है। So many God has taken while they are young. बहुत से लोगों को परमेश्वर ने बुला लिया जब वो जवान ही थे। So many faithful believers. बहुत से विश्वास योग्य विश्वासी, They've only lived a short time on this earth. उनके पास बहुत ही थोड़ा समय था इस जमीन It's पे। almost like God longs for them to be with him. ये शायद So he takes them while they're young. ये शायद इस तरीके से था कि परमेश्वर चाहता था कि उन्हें अपने पास बुला ले और इस वजह से परमेश्वर ने उन्हें जल्दी अपने पास बुला लिया। We already know about Jitu, of course, हम कलीसिया जैसे जानती है जितेंद्र भाई के बारे में, who ran his race faithfully and God took him. जो अपनी दौड़ को बहुत ही विश्वासयोग्यता से दौड़ रहे थे और यीशु ने उन्हें जल्दी बुला लिया। But maybe in your own lives, maybe you know of faithful believers who've gone to the Lord when they're young. पर आप व्यक्तिगत जीवन में ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं जो बहुत ही जल्दी संसार को छोड़कर चले गए। There are so many, and there are so many, even in the history of this nation, missionaries who've come here who gave their lives while young. और इस संसार के इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सेवा करने के लिए आए और वो बहुत ही जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। Some of you have heard of Henry Martin, probably. He was a Christian
from England, and he had translated the New Testament into Urdu and into Persian. आप एक ऐसे सेवक हेनरी के बारे में जानते होंगे जो इंग्लैंड के थे और उन्होंने ट्रांसलेट किया था भाषा को इंग्लिश से उर्दू में. And I just want to read something that he wrote, something he said. और मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं जो उन्होंने कहा था. He came here when he was 25. वो भारत आए जब वो सिर्फ महज 25 साल के थे. He died when he was 31. वो मर गए जब वो सिर्फ 31 साल के थे. Actually in Armenia, which was under Turkish rule. आर्मेनिया में जो टर्किश सिंहासन में था, राज्य में था. That's where he ended up dying. But he, after translating, after giving everything for the sake of the Lord Jesus. और ट्रांसलेशन के समय अपना सब कुछ जो परमेश्वर को वो दे सकते थे उन्होंने दिया. He died at such a young age. और बहुत ही जवानी के दिनों में वो मर गए. But he said, the flesh shrinks back at times. पर उन्होंने इस बात को कहा कि देह वापस देह में जुड़ती है. But I don't regret resigning the world or denying the world. पर मैं संसार का इनकार करने से शर्मिंदा नहीं होता. Life is only a short journey. जिंदगी एक छोटी यात्रा है. And then if I am faithful unto death, और यदि मैं मरने तक विश्वास योग्य बना रहा, my gracious reward will begin. मेरा असली इनाम शुरू होगा. He had the right perspective. और उसके पास एक सही मार्गदर्शन था. He was looking forward to his heavenly reward. और वो अपने आसमानी इनाम की ओर देख रहा था. And in these days in which we live, which are now so close, as I've said, to the end. और जिस संसार में हम रह रहे हैं जिसको हम जानते हैं कि हम अंत के बहुत ही करीब हैं, Let us all be found faithful. हम सभी विश्वास योग्य पाए जाने चाहिए. I pray that for all of those who know the Lord Jesus in this place, मैं ये दुआ करता हूँ हम में से हर एक जो यीशु मसीह को जानता that है, they will be strengthened, taking courage from the Lord to live faithfully. उन्हें वो ताकत मिले कि वो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता के जीवन को जी सके. And I pray that if anyone here does not know the Lord Jesus, does not love Him, और यहाँ पर कोई ऐसा है जो परमेश्वर को नहीं जानता या परमेश्वर से प्यार नहीं करता, then they will come under the conviction of the Holy Spirit. तो वो Under the conviction of the Holy Spirit. तो वो परमेश्वर की आत्मा के जोर में, Because He's the one who convicts of sin. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा है जो इस जोर को हमारे ऊपर रखता है कि गुनाह भी क्या है. And Jesus is ready to forgive, ready to cleanse, ready to receive. और यीशु मसीह तैयार है पूरी तरीके से पापों को, गुनाहों को धो देने के लिए और माफ कर देने के लिए. Just remember, as He was not deceived by any person's heart who shouted out Hosanna. जैसे यीशु मसीह किसी के भी दिल से धोखा नहीं खाया कि जो उसके लिए होसन्ना के नारे लगा रहे थे. So He's not deceived by anyone sitting in church who may look good on the surface, but whose heart is not तो belonging यीशु to Him. मसीह चर्च में बैठे लोगों से भी धोखा नहीं खा सकता कि जो लोग बैठे तो हैं पर उनका दिल और दिमाग संसार की ओर है. Let us renew our love commitment for our Lord. हमें अपने प्यार को, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए और भी ज्यादा अच्छा करना है. Our Redeemer, the one who redeemed us with the price of His blood. और हमारे लिए उद्धारकर्ता, छुड़ाने वाला, जिसने अपने लहू का दाम देकर चुकाया है. As we look forward to Easter next week, जब हम अगले हफ्ते ईस्टर की ओर बढ़ रहे हैं, let's renew our commitment now and give ourselves completely to Him. हम अपने जीवन को परमेश्वर पर आधारित करें और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें. Let's pray. आइए दुआ करें. Father, we praise You for the gift of Your Son. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आपके